welcome back to Defense Info, a one-stop solution for all your defense needs. Okay, so आज हम जो पार्ट करेंगे दिस इज द पार्ट 8 इन द करंट अफेयर्स सीरीज. पिछले जो 7 पार्ट्स हैं विच कवर्स वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन CDS 1 2021. तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट और उसके बाद आप इस पार्ट पे आइए. ओके, एंड मूव करते पहले आज के क्वेश्चन पे. So your first question for today is regarding your Abel Prize 2020. Now Abel Prize 2020 क्यों important है? Because अगर आपने ट्रेंड फॉलो किया होगा तो ये पिछले आई थिंक पिछले 2 साल में एक बार पूछा गया है इन CDS और CAPF एग्जामिनेशन. किसी में एक पूछा गया था एबल प्राइज करके. सो एबल प्राइज इज वन सच प्राइज जो UPSC नॉर्मली पूछ लेता है कभी कभार. ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर आ गया तो फालतू के नंबर चले जाएंगे ना, तो यू डोंट वांट, ऑफ कोर्स यू डोंट वांट दैट थिंग. Now, this is regarding Hillel Frustenberg and Georgi Margulis, who have got the Abel Prize. Okay, and because of which they have got this, for their applied theories of probability, randomness, and dynamic system, other areas of maths. So, of course, आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है. यहाँ पे आपका नाम ध्यान में रखना है. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे किसी सिंगल पर्सन को नहीं मिला है. You can see both of them are here, Hillel Frustenberg and Georgi Margulis. And what is the contribution? Their contribution is applied theory of probability randomness. ठीक है, so this you have to remember. Moving on, now we talk about freedom in the world 2020 report. Now again this is very important कि जो normally indexes होती हैं, reports होती हैं, कौन release करते हैं, ये questions आ जाते ही हैं. ठीक है, हर एक एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा. So firstly ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान में रखना है कि टॉप किसने किया है. First of all, तो this year it is Finland who has topped, followed by Norway, Sweden एंड नेदरलैंड्स. एंड देयर आफ्टर आपको और एक चीज ध्यान में क्या रखनी है कि इंडिया की पोजीशन क्या है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में या रिपोर्ट में. तो इंडिया इज एट 83rd पोजीशन. ठीक है, एंड इंडिया विटनेस द वर्स्ट कोर डिक्लाइन अमंग द वर्ल्ड्स 25 लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज. सो अगेन दिस इज नॉट वेरी गुड थिंग टू हियर अबाउट, बट देन इट इज द ट्रूथ. सो दिस इज रिगार्डिंग दिस. एंड आप मुझे एक चीज इसमें लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि who releases the freedom in the world 2020 report in the comment section. ठीक है, आप मुझे लिख के बताएंगे comment section में कि who releases, basically कौन रिलीज कौन करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है. एंड वंस इफ इट कम और अगर आप स्किप कर जाते हो तो इट इज योर लॉस. ओके, मूविंग ऑन. नाउ दिस इज रिगार्डिंग द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड. नाउ व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एन इंडियन हैज वोन द अवार्ड. एंड हु इज इट? ही इज नन अदर देन आवर फेमस जावेद अख्तर साहब. And so poet, lyricist and writer Javed Akhtar has become the first Indian who has got the prestigious Richard Dawkins Award for 2020. And this is for what basically? This is for critical thinking, holding religious dogma up to scrutiny and advancing human progress and humanist values. Okay, so this is the contribution made by Javed Akhtar sir. ठीक है, so you have to remember this thing. Okay, now we talk about World Food Prize. Okay, and this is again an Indian who has bagged the prize. So कौन है ये है डॉक्टर रतन लाल who has been awarded the 2020 World Food Prize and in a virtual award ceremony, of course due to COVID सब कुछ virtually हो रहा है. And the annual laureate award ceremony rivals that of Nobel Prize. So this is basically if you see that ये food के डिपार्टमेंट में आप उसको नोबेल प्राइज बोल सकते हैं. ठीक है, drawing over 800 people from more than 50 countries. Okay, so this again becomes very very important. ठीक, moving on, this is again one such achievement by a Indian musician. So this is the Medal of Order of Australia. Okay, so this is the highest award which is conferred. Now again Indian musician and founder of Kalakruti Music Organization in Australia, Shobha Shekhar. So what is the name? You can see the picture here. शोभा शेखर इनका नाम है और इनको क्या दिया जाएगा? मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, और ये कहाँ से इनको कहाँ से किस चीज़ के लिए बेसिकली दिया जा रहा है और कहाँ से है ये? तो शी इज़ अ मॉन्ट्रियल बेस्ड आर्टिस्ट एंड लेक्चरर, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न. एंड उनको दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ हर सर्विस टू द कम्युनिटी एंड द कंट्री. सो दिस इज द रीजन दैट शी इज बीन provided she is conferred this Medal of Order of Australia. So आपको ध्यान में रखना है शोभा शेखर. Okay, moving on. Now we talk about some committees here. बिमल जुल का कमेटी पहले. Now why a committee very important? क्योंकि recently क्या हुआ था
कि काफ़ी जैसे असम में आग लगी थी, प्लस हमारा ये जो फिल्म इंडस्ट्री में रिगार्डिंग रैशनलाइजेशन करके जो इसका जो चल रहा था, ठीक है। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब देश में हो रही थी, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इस बेसिस पे जो कमिटीज बन रही थी, नाउ दिस कमिटीज अगेन देन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी कमेटी क्या कर रही है, किस चीज़ की क्या रिकमेंडेशंस हैं, तो ये भी यूपीएससी में आते हैं, है ना। तो आपको इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज विमल जुल्का कमेटी अबाउट। सो दिस इज बेसिकली एन एक्सपर्ट कमेटी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट्स एंड रिव्यू ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज which submits a report to Ministry of Information and Broadcasting. So this committee was chaired by Vimal Julka, क्योंकि ये क्या होता है कि इनके नाम पे पड़ता है, ये जो चेयरपर्सन होते हैं ना, इनके नाम पे इनकी कमेटी रख दी जाती है। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि किस लिए है। सो दिस इज बेसिकली ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट्स एंड रिव्यू ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज। सो यू कैन सी हियर he is being felicitated by our honorable president Ramnath Kovind sir. Okay, now this is again one such committee, MB Lal committee. This is very very important, आप तो उसको मार्क करके रख लो क्योंकि आने के बहुत पूरे पूरे चांसेस हैं। This is MB Lal committee which was constituted following a fire incident in October 2009 at the IOCL terminal. अब मैं ये 2009 का क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए 2009 का करंट अफेयर है, ये क्यों मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो आसाम में जो आग लगी थी, which I was just talking about, ठीक है, जो फैक्ट्री में, तो इट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इट्स। सो इस कमेटी ने क्या बोला था, इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, ठीक है। तो ये जो है अप्रूव हो गए थे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से, बट ये जो मतलब इनका जो इम्प्लीमेंटेशन था इमीडिएटली होना था, बट वो हुआ नहीं था, ठीक है। एंड उसका चलते आप देख सकते हो कि एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, ठीक है। मे बी इट कुड हैव बीन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता, बट काफी कुछ मे बी कंट्रोल में लाया जा सकता था। बट मिनिस्ट्री बोल रही है कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री एट लीस्ट 94% ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय एमबी लाल कमिटी हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, ओके, बट दैट नीड्स टू बी सीन ऑन ग्राउंड लेवल। हाउएवर आपको ये ध्यान में रखना है कि एमबी लाल कमेटी किस चीज से रिलेटेड है, तो ये दिस वाज रिगार्डिंग द फायर इंसिडेंट एट आईओसीएल टर्मिनल एट जयपुर। तो इसी से रिलेटेड जो इन्होंने गाइडलाइंस दी थी विद रिगार्डिंग टू सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलोड बाय ऑयल कंपनीज। सो ऑफ कोर्स वो इस कंटेक्स्ट में जो है रिलेट कर जा रहा है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट साइक्लोन निसर्ग। अब साइक्लोन से क्वेश्चन आया था इस साल सीएपीएफ में भी कि नेमिंग किसने किया है एंड ऑल, तो आपको ये वाला भी ध्यान में रखना है निसर्ग, क्योंकि ये जो है हमारा जो वेस्ट कोस्ट वहां पे हिट किया था। सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट साइक्लोन टू हिट द महाराष्ट्र कोस्ट सिंस 1891। तो आप देख सकते हैं कि काफी सालों बाद एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ है, फर्स्ट साइक्लोन विच इज हिट। एंड साइक्लोन वायु आल्सो फॉर्म्ड इन जून लास्ट ईयर, बट इसने जो इतना वो नहीं किया था, एंड इट डिड नॉट डिवास्टेट दैट मच, ठीक है। तो इसका जो नामकरण बेसिकली हुआ है निसर्ग का, ये किसने किया, दिस इज डन बाय बांग्लादेश। तो इस साल जो पूछा गया था वो अम्फन का पूछा गया था, तो अम्फन था थाईलैंड से एंड निसर्ग है बांग्लादेश से, ठीक है। तो ये आपको चीज में ध्यान में रखना है। एंड इसी से रिलेटेड जो है आप साइक्लोन के बारे में भी पूरा पढ़िए कि कौन से हेमिस्फीयर में बनता है, जो डायरेक्शन होती है विंड की वो कैसी होती है, व्हाट इज द आई ऑफ अ साइक्लोन, अंदर टेम्परेचर कैसा होता है, प्रेशर कैसा होता है, आपको सब ये वाली चीजें ध्यान में रखनी है। हम टेलिंग यू यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, दिस इज लोनार लेक। नाउ ऑफकोर्स लोनार लेक इस साल काफी न्यूज में रहा था, बिकॉज क्या हुआ था कि इसका जो कलर था इट हैड रिसेंटली टर्न्ड पिंक, ठीक है। एंड वन लाइक ये जैसे पिंक हुआ था तो काफी जो है साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स जो हैं चिंता में पड़ गए थे कि ये एक्चुअली हुआ क्यों है। बट दे बिलीव दैट लोनार लेक टर्न्ड पिंक बिकॉज द इंक्रीज सैलिनिटी इन द वाटर एंड ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गी। तो आपको पता होगा कि एल्गे की वजह से काफी जो है कलर चेंजेस आते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरियस एल्गे एंड बैक्टीरियाज, ठीक है। तो ये पहली चीज तो कहाँ पे लोकेटेड है। नाउ लोनार लेक इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र विच इज एन ओवल शेप लेक एंड इट इज अ क्रेटर लेक बेसिकली। तो क्रेटर लेक किसको बोल रहा हूँ कि जिसका फॉर्मेशन एक मीटियोराइट हिट से हुआ था, ठीक है। तो काफी साल में भी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, यू कैन सी हियर 50,000 इयर्स अगो एक मीटियोराइट ने हिट किया एंड एक उसने क्रेटर जैसा कुछ बनाया एंड उसमें वाटर एक्यूमुलेट होते होते यू कैन लाइक टुडे यू सी इट एज अ लूनर लेक, है ना। एंड द एरिया अराउंड इट इज अ इको सेंसिटिव जोन ऑफ कोर्स, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ द मटेरियल इट इज फाउंड ऑन द मून इट्स आल्सो, सो ऑफ कोर्स रिलेटेबल होगा उससे। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक। नाउ टॉकिंग अबाउट क्रू ड्रैगन, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मैं एमसीक्यूज मतलब सॉरी द टॉपिक्स व्हिच आई एम कवरिंग,
तो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और यू कैन सी, ठीक है, CAPF में भी हुआ है एंड ऑफ कोर्स CDS में भी होगा, ठीक है। सो SpaceX बेसिकली इट इज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी, नाउ अगेन दिस इज फर्स्ट प्राइवेट, ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, टू लॉन्च पीपल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इनटू ऑर्बिट, अ फीट अचीव बाय US, रशिया एंड चाइना ओनली। नाउ दिस इज अ स्पेसक्राफ्ट बिल्ड बाय SpaceX, ठीक है, विथ अलॉन्ग विथ नासा एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। तो ये चीज हुआ है एंड इट इज डन अंडर द डेमो 2 मिशन। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किस कौन से मिशन के अंडर हुआ है। दिस इज डन अंडर डेमो 2 मिशन ऑफ नासा एंड SpaceX। यू कैन सी दिस इज द इमेज अटैच ऑफ SpaceX, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा पूछा जा सकता है कि क्रू ड्रैगन क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है नॉर्मली, ठीक है। सो व्हाट इट इज अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है, जो कि एस्ट्रोनॉट को कैरी करके लेके जाएगा। एंड हु हैज लॉन्च्ड इट, SpaceX along with NASA, ठीक है। व्हाट इज द मिशन, दिस थिंग डेमो 2 मिशन, ठीक है, जिसके तहत ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। एंड SpaceX के द्वारा और एक में जो इन्होंने बनाया है रॉकेट, दैट वाज Falcon 9 व्हिच कैरीड द स्पेसशिप इनटू द ऑर्बिट, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। जो टर्मिनोलॉजी है इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, हाईली चांसेस हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। हम हर एक जो वीडियो है उसमें अराउंड 10 क्वेश्चंस जो है कवर करते हैं, 10 टॉपिक्स कवर करते हैं टू बी प्रिसाइज, एंड दीज आर वेरी वेरी हाईली रिलेवेंट। तो आप इसको सिर्फ 10 क्वेश्चन के हिसाब से मत देखिए या 10 टॉपिक्स के हिसाब से मत देखिए। मैं यहाँ पे काफ़ी कुछ और भी मोर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको बताता रहता हूँ साइड बाय साइड, जो कि इक्वली आपके काम आएगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो दिस वॉज दिस गाइज, एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड ऑफ कोर्स हिट दैट बेल आइकन, बिकॉज अगर आप नहीं दबाते हो तो आपको नोटिफिकेशन फर्स्ट नहीं मिलेंगी एंड यू माइट एंड अप सर्चिंग द वीडियो, ठीक है। तो जहाँ पे आपको नॉर्मली मिल जानी चाहिए वो आप फिर सर्च करके ढूंढोगे, ओके। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।